मूल्यों के बिना विज्ञान खतरनाक है। बिना नैतिक मूल्यों के किया गया वैज्ञानिक प्रयोग मानवता के लिए नुकसानदेह हो सकता है। विज्ञान का गलत उपयोग युद्ध और विनाश को बढ़ा सकता है। मूल्यों के बिना विज्ञान समाज में डर और असुरक्षा पैदा करता है। विज्ञान स्वयं में बुरा होता है या उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति जिम्मेदार होता है। विज्ञान ने मानव जीवन को बेहतर और सुरक्षित नहीं बनाया है। विज्ञान के विकास से ही हमें नई सुविधाएं और समाधान नहीं मिले हैं। नमस्कार, सेंट जॉन्स हायर सेकेंडरी स्कूल चापड़ा में आप सभी दर्शकों का स्वागत। आज हम विद्यालय में एक बहुत महत्वपूर्ण डिबेट डिस्कशन के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें भाग लेने के लिए हमारे विद्यालय के टैलेंटेड स्टूडेंट्स, साथ ही हमारे विद्यालय के निर्देशक महोदय फादर सोनी एंटनी, प्राचार्य महोदया सिस्टर अर्पिता एवं हिंदी की शिक्षिका रेबेका एकेल मौजूद हैं। आज का हमारा डिबेट एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर होने जा रहा है, जिसका टॉपिक है साइंस विदाउट वैल्यूज इज डेंजरस। इस डिबेट में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो टीमें मौजूद हैं, टीम ए एवं टीम बी। टीम ए इस डिबेट का पक्ष रखेगी, वहीं टीम बी इस डिबेट के विरोध में अपने कुछ बिंदु कहेंगी। तो आइए इस डिबेट की हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत इस डिबेट की टीम ए करेगी अपने इस टॉपिक के पक्ष में पहला बिंदु रखकर। तो टीम ए से मैं आमंत्रित करता हूं जी। Hello everyone, myself Vibhuti Yadav. I study in class 11th. We strongly stand in favor of this motion. Science gives human a great power, but without responsibility like compassion, but without values like responsibility and compassion, this can be misused. Value act as guidelines that ensure that the scientific discoveries are used for the welfare of humanity. साइंस ने हम ह्यूमंस को बहुत बड़ी पावर दी है, लेकिन बिना वैल्यूज के जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपैशन के इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और हो ही रहा है। और वैल्यूज हमें बताती हैं कि जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं और हो रही हैं, वो सब ह्यूमंस के फेवर के लिए हुई है, ना कि उनके अगेंस्ट जाने के लिए हुई हैं। Scientific discoveries are in favor of humans, not against them. Who is going to counter Vibhuti's point? Yes. Hello everyone, myself Anshali Patel from class 11. We strongly against this motion. My counter to your point is science is neutral. Therefore, blaming science is unfair and illogical. Yes, very fair point. Now next point from team A. Hello everyone, myself Shriya Chaudhary. Anshali, I don't agree with your point because I think medical ethics without values are so dangerous. जो unethical medical experiments हुए हैं इंसानों पर पास्ट में, वो ये हमें दर्शाते हैं और दिखाते हैं कि साइंस ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर सकता है, इवन किया भी है. Values जैसे concern and respect for life are so essential to prevent such cruelty, to protect the humanity. Yes, very good point raised by Shreya. Who is going to counter Shreya's point? Yes. Hello everyone, myself Abhimanyu from class 9. Shreya, I have an opinion for your point, that is, history show that when we mix values with science, we get disinformation. इतिहास हमें यह सिखाता है कि जब भी हमने वैल्यूज को साइंस के साथ मिलाया है तो हमें गलत सूचना ही मिली है। जैसे नाजीज और सोवियत दोनों ने अत्याचार को जस्टिफाई करने के लिए मूल्य आधारित विज्ञान का इस्तेमाल किया था। इसीलिए साइंस इन रॉन्ग हैंड्स इज नॉट डेंजरस। Science without values not dangerous. Science in wrong hands is dangerous. Yes, so Abhimanyu's point is science in wrong hands is dangerous. From team A, who is going to say next point? Yes. Hello everyone, myself Harshita Patidar from class 9th. Abhimanyu, my reply to your counter is environmental damage. Industrial and technological growth without environmental values has caused pollution and climate change. And that is why science को nature के respect करना ही होगा, वरना human survival पर ही खतरा आ जाएगा. Yes, very good point. Science का respect is necessary. Without respecting it, human survival is at extinct. Yes, next point. Hello everyone, myself Wasim Khan from class 9. And Harshita, I have a counter on your point, that is, thinking science is evil is just being afraid of truth. Wars, pollution और harmful technologies, ये सब
इंसानों के लालच, गलत डिसीजन या राजनीति की वजह से होता है, ना कि साइंस की वजह से। साइंस को दोष देना उसी तरह है जिस तरह हम किताबों को दोष देंगे उनके गलत आइडियाज के लिए। इसलिए ऐसा सोचना कि साइंस बुरा है, यह बस सत्य से डरना है। Thank you, Asim. Very good point. Next point from team A. Hello everyone, myself Nitika Alawa from class 9th. Asim, I am not agree with your point. My reply to your point is artificial intelligence without ethical limits is dangerous. Artificial intelligence में अगर लिमिट्स नहीं ऐड की जाएगी तो ये लोगों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करेगा और साथ ही ह्यूमन फ्रीडम को भी खत्म करेगा। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी लोगों की मदद करने के लिए है, ना कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एथिकल लिमिट्स ना होने के कारण आज लोगों को साइबर क्राइम जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। Yes, very strong point raised by Nitika. Who is going to oppose her point from team B? Yes. Myself, Riyaikul from class 9th. Nitika, my counter on your point is that science is beneficial. साइंस ने हमें कई बेनिफिट्स दिए हैं, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी रहे हैं। वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स में काफी इम्प्रूवमेंट आया है। यह बेनिफिट शो करते हैं कि साइंस इज लार्जली अ फोर्स फॉर गुड, देयरफॉर इट इज अ पावरफुल फोर्स जिसे एथिकल वैल्यूज के गाइडेंस में यूज किया जाना चाहिए। Very good point and very strong point raised by Riya. Next point from team A. Hello everyone, myself Veer. I counter against the point that Riya says. My point is genetic engineering without values lead to be discrimination and misuse of human genes. Thank you, Veer. Next point from team B. Hello everyone, I am Navya Rajawat from class 9th. So Veer, my counter on your point that is science has many medical procedures which is considered unethical, लेकिन उन्होंने करोड़ों लोगों की जान को बचाया है और ह्यूमन लाइफ को नया आधार दिया है। विज्ञान ने मानव जीवन को नया आधार दिया है। टीम ए, नेक्स्ट पॉइंट। Hello everyone, myself Yuvraj from class 9th. My reply on Navya's counter is technology without value. टेक्नोलॉजी बिना वैल्यू के अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। साइंस को डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ इकोनॉमिकल प्रोग्रेस पर। Science should focus on development, not just economic progress. Who is going to oppose? Yes. Hello everyone, myself Mahijat. Yuvraj, my counter on your point is values change over time and culture. सिर्फ इसीलिए क्योंकि साइंस बदलती हुई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर निर्भर नहीं करता। तो इसी के साथ आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो डिबेट विद्यालय में आयोजित की गई उसका अंत होता है। इस डिबेट के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर आज विद्यालय में बच्चों ने चर्चा की, जिस पर सभी बच्चों को एवं सभी देखने वाले दर्शकों को इससे सीखने को मिलेगा। आज की डिबेट में पधारे हमारे अतिथिगणों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही मीडिया से आए साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे विद्यालय के टैलेंटेड स्टूडेंट्स का, जिन्होंने इस डिबेट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेंट जॉन्स हायर सेकेंडरी स्कूल चापड़ा में इस तरीके की गतिविधियां प्रतिदिन आयोजित होती रहती हैं, जिससे बच्चों का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है एवं बच्चों को काफ़ी चीज़ों का सीखने का एक मौका दिया जाता है। तो इस डिबेट में सभी दर्शकों ने भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।